Hello students, how are you? I'm fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay. So every day I used to tell this thing, yeah, actually this in the same manner. Okay. So thank you very much for being with me and with my channel as well. Okay, and thank you for your loving support and which you are giving to my channel as well. Okay, so thank you very much for joining the classes and for giving a lot of encouragements and the motivations from your side. Okay, so in this lecture I am going to discuss the binomial theorem, okay, for class 11, and in this lecture we will solve some different level questions, okay, which are very important for clearing the concept. And I think this type of questions, whenever this type of questions will be solved, your IQs, your ideas and the concepts will be cleared, much more cleared. Okay, so and that's why just I am solving this type of questions so that you can more and more knowledge and the concepts, okay, from my lectures and from the videos as well. Okay, so शुरू करते हैं. आज का पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m. फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m. फाइंड ए पॉजिटिव निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू of m, okay, m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x whole to the power m is 6. Okay, so here this expansion is given 1 plus x whole to the power m, it is given. Okay, and this is the expansion actually. Okay, now you need to find the value of m. For that, the coefficient of x square is 6. So at first we need to find the coefficient of x square. Okay, so at first we need to figure out the coefficient of x square. Okay, just like your previous solutions, and I think we had solved such type of questions where the coefficient of some x term was found. Okay, so in this part the same thing will be happen. Just we need to find the coefficient of x square here. Okay, and after that whatever the coefficient will come, that will be equal with 6, and after that the value of m I think can be found. Okay, so सबसे पहले आपको x square का कोफिशिएंट निकालना है. ये 6 बुक्स जो है आप छोड़ दो, ठीक है. सो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ किसी वेरिएबल का कैसे निकालते हैं, हम लोग जो प्रोसेस करते हैं ना, लेट x square is present in where r plus 1 tau, ऐसे ही तो करते हैं. So t r plus 1 equals to m c r 1 to the power m minus r x to the power r. Okay, so that means 1 के ऊपर कुछ भी पावर रहे तो यहाँ पर तो लिखना ये जरूरत है नहीं, x to the power r. So t r plus 1. So according to our assumption, x square should be present in r plus 1 term. x square आना चाहिए, but आपका क्या आ रहा है, x to the power r आ रहा है. So x to the power r को हम लोग x square के साथ इक्वल जो है वो लिख सकते हैं. वहां से r का वैल्यू मुझे 2 मिलेगा, ठीक है. So this means ये इक्वेशन नंबर 1. So from क्या रहा है 1, t
2 plus 1 equals to mc2 x to the power 2. That means x square का कोफिशिएंट क्या है? So कोफिशिएंट क्या है? So कोफिशिएंट equals to mc2. कोफिशिएंट मतलब है x टर्म जो है उसके साथ जो टर्म रहेगा उसी को आप लिखना है. ये don't write this x related expression. Okay? So according to this question ये जो कोफिशिएंट मिला that is 6. यही क्वेश्चन में 6 दिया गया है. So according to the question, just write this statement. So according to this question, यहां पर लिखो. So according to the question, ये जो MC2 है ये इसका वैल्यू क्या है? 6 है. क्वेश्चन में बोला गया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है. आपने निकाला है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है MC2 है, तो दोनों सेम नहीं है क्या? ऑब्वियसली बोथ आर सेम. तो MC2 इसका अगर मैं करूं, देखो फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल्स टू 6. ये जो फैक्टोरियल m आपको दिखाई दे रहा है उसको अगर मैं तोड़ूं, m फिर m माइनस 1 फिर m माइनस 2 m माइनस 3 m माइनस 4 m माइनस 5 ऐसे करते 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 5 4 3 2 1 ऐसे स्टॉप होगा. तो मैंने क्या किया, m माइनस 2 में स्टॉप कर दिया. ठीक है, या फिर ऐसा साइन दे सकते हो, ऐसा ना दे, क्योंकि नीचे मुझे दिखाई दे रहा है m माइनस 2. ठीक है, तो ये 6 है, m माइनस 2 कैंसिल होगा. तो यहां पर m स्क्वायर माइनस m और ये बाई 2 है, बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है बस. तो m स्क्वायर माइनस m इक्वल्स टू 12. नाउ m का वैल्यू निकालो. m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 4m प्लस 3m minus 12 equals to 0. That is, if you take a m as common, that is m minus 4 and plus 3, m minus 4 equals to 0. That is m minus 4, m plus 3 equals to 0. That is m equals to 4 and m equals to minus 3. Now, what is m here? M is the power actually. M is the power. And remember this thing. This binomial theorem concept only for the positive numbers. Positive numbers. That means only for the natural numbers. Okay? Only for the natural numbers. And natural numbers all are positive. 1, 2, 3, 4. So that means ये जो है m equals to minus 3 ये impossible है. Not possible लिख रखो. m का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है. So that means m equals to finally क्या है? 4. And it is the final value of m equals to 4. It is the exact value of m. Okay? ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. देखो नेक्स्ट, if the coefficient of नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन जो है अभी जो करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी. ठीक है, और दैट मींस स्कूल कॉलेज लेवल में भी ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है. ठीक है, सो यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली. ओके, नाउ if the coefficients of a to the power r minus 1, a to the power r, a to the power r plus 1, okay, of 1 plus a whole to the power n are in AP. AP means arithmetic progression. And do you know the arithmetic progression? A sequence will be given, and this sequence actually is in arithmetic progression when actually there's one particular form of arithmetic progression are there. Okay, so you should know this form, and I think in class 10 you had got this arithmetic progression chapter also, and I think you should know this form. Okay, हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, एपी, prove that
prove that n square minus n ब्रैकेट में 4r plus 1 plus 4r square minus 2, okay, equals to 0. Very very important question and NCERT exercise question also, okay. So यहाँ पर ये जो if the coefficients of these three expressions are there that you can see, just you need to find the coefficients of these three terms, three expressions. From where? From this given expression, this expansion, okay. So यहां से आपको ये तीनों का कोफिशिएंट निकालना है आर इन एपी। एपी में, अच्छा एपी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कोफिशिएंट्स निकालते हैं। गिवन 1 प्लस ए होल टू द पावर n, ठीक है। तो यहां पर लिखो कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर। अच्छा यहां पर ए सेकंड टर्म है ना, तो मैंने बोला था कि सेकेंड टर्म के ऊपर जो पावर जो है वो रहेगा, वो ये एनसीआर फॉर्म लिखा जाता है ना, वो नीचे आएगा। दैट मींस यहां पर पावर क्या है? एन, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1, ठीक है। और फिर फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 टू द पावर एन माइनस आर माइनस 1। ये तो लिखना जरूरत नहीं है, 1 के ऊपर पावर है, अल्टीमेटली तो 1 ही होगी, तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहां, ठीक है। सेकेंड टर्म के ऊपर जो पावर रहेगा वो ही आएगा नीचे, और पावर तो यहां पर जो पावर रहेगा वो यहां पर आएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ, ये बात को ठीक तरह से एकदम अटेंटिवली सुनना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर एक के ऊपर पावर क्या है? आर है, दैट मींस एन सी आर आएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ ए आर प्लस 1, अब पावर क्या आया? आर प्लस 1, दैट मींस एन सी आर, यहां पर क्या आएगा? आर प्लस 1। सो दिस आर द कोफिशिएंट्स, these are the coefficients। किसका? इसका, इसका, इसका। कोफिशिएंट्स बोलने से आपको सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। अब आओ, बोला गया कि ये तीनों कोफिशिएंट जो है एपी में है। अच्छा देखो, ए बी सी, आपके पास 3 नंबर है, 3 terms are there and these 3 terms are in AP, then what? If 3 terms are in AP, then what can I write and what will be the next step? Okay, next step is twice B equals to A plus C। That means यहां से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं A minus B equals to B minus C। AP कब होता है? जब ये डिफरेंसेस इक्वल आता है। दैट मींस जितना भी नंबर्स दिया जाएगा, हर एक नंबर के बीच डिफरेंस सेम आना चाहिए। दैट मींस A और B के बीच जितना डिफरेंस होगा, B और C के बीच उतना ही डिफरेंस होगा। C के बाद अगर D होता, C और D के बीच सेम डिफरेंस होगा। तो हर जगह एक सीक्वेंस अगर लिखा रहे, ऐसे कोमा 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 देंगे, हर जगह इफ द डिफरेंसेस आर सेम, देन दिस सीक्वेंस विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो from this I think this A plus C equals to twice B can be, that means जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा A plus C equals to twice B, तो डायरेक्टली हम लोग यही लिख सकते हैं। तो अगर 3 नंबर AP में है तो हम लोग डायरेक्टली ये A plus C equals to twice B लिख सकते हैं। अब ABC के जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे ये है तो लिखो here NCR minus 1, NCR और NCR plus 1 R in AP, ठीक है। दैट मींस ये होगा A, ये होगा B और ये होगा C। सो फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस B इक्वल्स टू A plus C, तो B के जगह क्या आएगा? 2 into NCR इक्वल्स टू NCR minus 1 plus NCR plus 1, राइट, ठीक है। ट्वाइस B इक्वल्स टू A plus C। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर रखे, पूरा इक्वेशन को NCR से डिवाइड कर देते हैं। NCR minus 1 by NCR plus NCR plus 1 by NCR, ठीक है। पूरा इक्वेशन को हम लोगों ने NCR से डिवाइड कर दिया।
अब आओ मेन चीज में, कैलकुलेशन पार्ट में आ गया। ठीक है, यहां पर एक चीज यूज होगा, शायद हम लोगों ने कल लिखा था, एक नोट देके लिख कर रखो कि NCR बाई NCR माइनस 1, अगर ऐसा रहे तो n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जस्ट याद रखिए, अभी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तब ये सब फॉर्मूला जो है डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट आप याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का सिमिलरिटी क्या है? व्हाट इज सिमिलरिटी? सिमिलरिटी है, ऊपर अगर आर रहे नीचे एक कम होगा। ठीक है, अब आर के जगह कुछ भी हो सकता है, यहां पर आर के जगह कुछ भी हो सकता है, बट ये कंफर्म है नीचे जो रहेगा ना वो एक कम होगा, एक कम। ठीक है, अब ये 2 इक्वल्स टू NCR माइनस 1 बाई NCR प्लस NCR प्लस 1 बाई NCR, 2 इक्वल्स टू। अच्छा, ये यहां पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है यहां पर उल्टा है, रेसिप्रोकल आ गया। देखो NCR ऊपर रहना चाहिए, दैट मींस बड़ा वाला जो है, जो ग्रेटर पार्ट शुड बी न्यूमरेटर एंड द स्मॉलर पार्ट शुड बी द डिनोमिनेटर पार्ट। तो यहां पर ये जो है ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसको रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा? R बाई N माइनस आर प्लस 1। ये तो फॉर्मूला ही है, तो रेसिप्रोकल कर दो, आ जाएगा। R माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, R नीचे चला जाएगा, और उधर R ऊपर जाएगा और ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे आएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अब ये जो है मैंने बोला था, ऊपर जो है R के जगह कुछ भी रह सकता है। देखो R प्लस 1 है, नीचे क्या है? R है, तो R प्लस 1 से R कितना कम है? 1 कम है ना। मैंने बोला था ऊपर जो भी रहे R के जगह नीचे एक कम होना चाहिए, तो यहाँ पर R की जगह R प्लस 1 है, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला तो आप लोग लिख सकते हैं, नीचे एक कम होना चाहिए, तो R प्लस 1 से R एक कम है ना, दैट मींस फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये जो R है यहाँ पर R प्लस 1 है। फॉर्मूला आप बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या है? N माइनस आर, R के जगह आप लोग क्या लिखेंगे? R प्लस 1 प्लस 1 बाई R, R के जगह R प्लस 1 इक्वल 2 तो है, बस हो गया। अब तो एलसीएम करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट होगा, n माइनस आर प्लस 1 और इधर r प्लस 1, r इंटू आर प्लस 1, और इधर होगा n माइनस आर, माइनस n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n माइनस आर रहेगा, और इधर n माइनस आर प्लस 1। अब ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ पर तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस n स्क्वायर माइनस एन आर प्लस n माइनस एन आर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। थोड़ा कैलकुलेशन जो है फिर से थोड़ा वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एन आर प्लस एन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर प्लस 1। अब कुछ कैंसिल जाता है तो जाएगा, कैंसिल नहीं जाता है तो नहीं जाएगा, क्या करेगा? देखो अभी यहाँ पर एक R, यहाँ पर एक R तो कैंसिल तो जाता है, यहाँ पर एक R तो कैंसिल होता है। ठीक है, और कुछ कैंसिल जाता है? यहाँ पर नहीं, कुछ नहीं जाता है, जस्ट अब लिख लो तो क्या होगा? 2 इक्वल्स टू, इधर एक आर स्क्वायर, इधर एक आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2r स्क्वायर, फिर इधर एक m स्क्वायर और है नहीं, दैट मीन्स प्लस m स्क्वायर, इधर माइनस एन आर माइनस 2nr, दैट मीन्स ये भी गया, n स्क्वायर भी हो गया, n स्क्वायर भी हो गया, और कुछ बाकी है क्या? इधर प्लस n है, प्लस n बाई
एन आर प्लस एन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर। डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 2nr प्लस 2n माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस n। तो इधर देखो 2nr, ये इधर आएगा 2nr, ठीक है, 2nr गया। फिर इधर है प्लस ट्वाइस एन, इधर से माइनस एन करके एक आएगा। इधर है माइनस 2r स्क्वायर, इधर से भी एक माइनस 2r स्क्वायर आएगा। इधर है प्लस 2r, उधर r का तो कुछ है नहीं, प्लस 2r ही रहेगा। ये माइनस एन स्क्वायर करके इधर आएगा, बस, और तो कुछ बाकी नहीं है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके जैसे माइनस एन स्क्वायर प्लस 4nr प्लस n माइनस 4r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r, 1 2 3 4 5 n स्क्वायर गया, 2r भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अच्छा ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्रूफ क्या करना था, माइनस कॉमन ले, n स्क्वायर माइनस 4nr माइनस n प्लस 4r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r इक्वल्स टू 0। अब जस्ट मैच विद द आंसर, दैट मींस प्रूफ। प्रूफ में क्या था, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, वो देखो ये दोनों से माइनस n कॉमन आता है 4r प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 1 है, ये 1 है, सॉरी, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा, ये भी 2 होगा, इट मीन्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, प्रूफ, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर ये 1 था, डायगोनल मल्टीप्लाई करने से तो 2 इंटू 1, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 आना चाहिए, 2r आ गया था, है? तो इट इज प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। देखो, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ओके, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, sum of the coefficients of 3 terms of an expansion, sum of the 3 terms of x minus 3 by x square, x minus 3 by x square whole to the power m, okay, एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर अगर x 0 आ जाए, पूरा फंक्शन, पूरा एक्सपेंशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, सम द कोफिशिएंट है is 559, is 559, then find the term, then find the term which is containing x cube, which is containing x cube. Find the term which containing x cube. That means एक एक्सपेंशन दिया गया, ओके, x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर
whole to the power m. Power is m here, and m is positive obviously. Okay, is 559. That means continuous 3 terms आपको लेना है इस एक्सपेंशन से. Then sum of first 3 terms लिखो. First first sum of the first 3 terms of this expansion is 559. Okay, so this expansion तो given लिखो. It is given x minus 3 by x square whole to the power m. ये है expansion. So first 3 terms क्या क्या होगा? First 3 terms क्या क्या होगा? T1, T2, T3. First 3 terms. ठीक है? Here T1, जैसे T1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 + 1, क्योंकि +1 फॉर्म में तो आपको लिखना है. तो यहां पर r का वैल्यू क्या होगा? 0. दैट मींस MC0, पावर तो m है, MC0. ठीक है. फिर x to the power m minus 0 and minus 3 by x square whole to the power 0. ठीक है. ठीक है. T2 that means T 1 + 1. तो यहां पर r का वैल्यू 1 है. MC1 x to the power m minus 1 minus 3 by x square whole to the power 1. T3 that means T 2 + 1. That means MC2 x to the power m minus 2 minus 3 by x square whole. ठीक है. Now three terms कोफिशिएंट्स लिखो. कोफिशिएंट्स यहां पर ये मेंशन कर दो. कोफिशिएंट्स का सम करना है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखो. सो कोफिशिएंट्स ऐड कर दो. ठीक है. सम ऑफ फर्स्ट 3 कोफिशिएंट्स. तो फर्स्ट 3 कोफिशिएंट्स कौन सा आ रहा है? x इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. x यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा. तो यहां पर कोफिशिएंट्स देखो यहां पर देखो. पहला तो MC0 है. ठीक है. और यहां पर ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, बट यहां पर एक 3 भी है. 3 तो x का टर्म नहीं है. 3 को तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बट पावर क्या है? 0. दैट मींस 3 to the power 0. आंसर कितना होता है? 1. नो नीड टू राइट. तो दैट मींस यहां पर तो कोफिशिएंट सिर्फ MC0 ही आ रहा है. सो MC0 प्लस इसमें यहां पर MC1, बट ये तो x का टर्म है, नॉट एक्सेप्टेड. ये भी x² यहां पर है, नॉट एक्सेप्टेड. बट यहां पर ये 3 है. 3 के ऊपर पावर क्या है? 1. दैट मींस 3 to the power 1 भी एक आएगा. और एक माइनस भी है. एग्री? दैट मींस माइनस के ऊपर पावर 1 है, तो माइनस साइन भी तो बाहर आएगा ना. सो दैट मींस ये -1. थर्ड क्या है? MC2 तो है ही आपके पास. फिर 3² भी आएगा. फिर माइनस है, ऊपर पावर स्क्वायर है, माइनस एब्सॉर्ब हो जाता है. नो नीड टू राइट दिस माइनस. अब तीनों का सम, ये है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 559. ठीक है. इक्वल्स टू 559. अब आ जाओ. MC0 प्लस ये माइनस हो जाए, -3 इंटू MC1 प्लस 9 इंटू MC2 इक्वल्स टू 559. ठीक है. MC0 इसका आंसर क्या होता है? 1. ठीक है. MC0 मतलब 1. किसी भी MC0 दैट मींस यहां पर कुछ सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है. सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना यहां पर. सो MC0 ऑब्वियसली 1. -3 इंटू MC1 मतलब m.
और इधर 9 इंटू mc2 दैट मीन्स फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 इक्वल्स टू 559. 1 माइनस 3m प्लस 9 m को तोड़ के ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो m माइनस 2 उसमें स्टॉप करके फैक्टोरियल दे देते हैं, क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. 5 नाउ 1 माइनस 3m प्लस 9 क्या है, m स्क्वायर माइनस m बाई 2 इक्वल्स टू 559. अब थोड़ा एलसीएम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है. 2 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 9m इक्वल्स टू 559. अब इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके चले जाते हैं. 9m स्क्वायर इधर माइनस 6m इधर माइनस 15m हो जाएगा, 9m स्क्वायर की जगह, और इधर 2 माइनस दिस प्लस 2 माइनस 559 equals to 0. So now write this quadratic formation. After that, this middle term factorization will be followed, and I think the value of m, okay, can be found by using this middle term factorization. 9m square minus 15m, और इधर minus 559 से देखिए 557 equals to 0. 559 ये नीचे बाई 2 है ना, बाई 2 559 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 18 8, ओके, 1118 ये होगा 1118. नीचे डायगोनल ये नीचे एलसीएम वाला 2 है ना, तो वो कहां जाएगा, सो दैट मीन्स यहां पर 2 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 1116. आई थिंक 3 कॉमन जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 5m और माइनस पुश 372 equals to 0. That means 3m square minus 5m minus 372 equals to 0. So that means 3m square minus 36m plus 31m minus 372 equals to 0. ठीक है, तो 3m कॉमन, m minus 12 plus 31 common, m minus 12 equals to 0. So that is m minus 12 और इधर 3m plus 31 equals to 0. ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू एक बार 12 आ रहा है और इधर 3m equals to minus 31, तो that means which is impossible. So that means m का वैल्यू, so m equals to 12 भी आ रहा है यहाँ पर. m equals to क्या है, 12. Now after that, one extra portion was there in the question. Just you need to find the term which containing x cube. मतलब x cube related term आपको निकालना है. तो यहाँ पर now expansion becomes, जो एक्सपेंशन क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या था, x माइनस 3/x स्क्वायर होल टू दी पावर m था ना, m के जगह क्या आएगा. नाउ आपको x क्यूब जिस टर्म में x क्यूब है वो टर्म आपको निकाल के दिखाना है. ठीक है, कौन से टर्म में x क्यूब होगा. ठीक है कि नहीं. तो ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम लोग ने किया है, लेट r प्लस 1 तो टर्म में x क्यूब है, एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, देखो नाउ लेट x क्यूब इज प्रेजेंट, ऐसे तो करते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली कैसे बोले, प्रेजेंट इन r प्लस 1 टर्म. ठीक है, तो दैट मीन्स r प्लस 1 क्या आएगा, 12 CR x टू दी पावर 12 माइनस r
minus 3 by x square whole to the power r. That means tr plus 1 12cr x to the power 12 minus r minus 3 to the power r by x to the power twice r. So that means 12cr x to the power, ये x to the power twice r नीचे है ना, तो डिवाइड में है, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये पावर जो है वो माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स 12 माइनस 3r होगा. ऑलरेडी माइनस r तो पहले से ही है, माइनस 2r फिर से ऊपर चला जाएगा. दैट मीन्स माइनस 3r. दैट मीन्स माइनस 3 टू दी पावर r. तो यहाँ पर x से रिलेटेड टर्म कौन सा आ रहा है, ये है कि नहीं. तो यहाँ पर तो x क्यूब आना चाहिए. तो आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास कौन सा टर्म आ रहा है, x टू दी पावर 12 माइनस 3r आ रहा है. तो सो x क्यूब आना चाहिए. आपका आया है x टू दी पावर 12 माइनस 3r. दोनों तो सेम ही है. सो दैट मीन्स दोनों को हम लोग सेम लिख सकते हैं और वहां से हम लोग r का वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर r इक्वल्स टू 3r है. r इक्वल्स टू, सो ये 1 दे दो, ये 1. सो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में जाओ. t 3 प्लस 1 12c3. ओके 12c3 ये 1, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसमें तो एकदम पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन होके आया है. सो दैट मीन्स 12c3 x टू द पावर 12 माइनस 3 इंटू 3 इंटू माइनस 3 टू द पावर 3. सो बस हो गया t4 12c3 x टू द पावर 12 माइनस 9 क्या रहा है 3 और माइनस 27. दैट मीन्स x क्यूब कौन से टर्म में है, फोर्थ टर्म में. सो x क्यूब इज प्रेजेंट इन फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म यही तो आपको निकालना. So that means all these questions are very very important, that you can see the calculation part in this it is becoming very much lengthy, and just I think you need to be very much actually attentive while you are solving this type of questions. Okay, because in this calculation part, everywhere in every line there's different types of variations are there. Okay, so if you do some mistake once, then the rest of the parts will go to the dustbin. That means all the calculations will be useless. Okay, so just you have to be very much attentive. You have to be very much actually focused in each and every line while you are solving the calculation. That means while you are solving the line actually, okay, one particular line. So these questions are very very important and very I think tough also. I think little bit tough. This type of calculations are very very tough. Okay, so procedure is same everywhere. The same procedures I think are being followed. Just you are finding the coefficients, you are finding the terms, you are finding actually this nth term, mth term. This everything is going on in a range. Okay, but the calculation part just you need to take care about it. Okay, so इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में आज क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर बहुत स्पीड में जा रहा है, इसलिए हम लोग आज थोड़ा छोटा करेंगे. ठीक है, जैसे आपको जैसे प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. ओके, बाय एंड जय हिंद.